The simplest sugar like origin or precursor molecule, starting molecule, could be glyceraldehyde. It has an aldehyde also. It has one OH also, and it has another OH also. Now, why I am little miser in calling it as a glucose? Because it does not have polyhydroxy. It has only two hydroxy group. But still, I would call it as a sugar-like molecule because it is a triose, and this part of the sugar, this CH2OH and this part, it will be found in every other higher glucoses. Now, in this case, if this H and OH both are in this side, that means towards the right hand side, then all the other carbon OH, whatever will be there between aldehyde and this carbon in higher alcohol or higher sugar, that will be calling as D. So this is called as D glyceraldehyde. So the name of the D depends upon the orientation of H and OH on the chiral carbon atom. What is a chiral carbon atom? A chiral carbon atom is the carbon atom which has different substituents in all the four directions. Here see, aldehyde is there. This side OH is there. This side H is there. This side CH2OH is there. So this is a chiral carbon atom. Chirality is also termed as asymmetric. So a chiral carbon has different substituents in all its four directions. One side H, another side OH, another side CH2OH, another side aldehyde. So seeing this carbon, we can write whether the molecule will be D, capital D or small d. So this can be written theoretically. This gives direction or orientation of functional group, orientation of functional group on chiral carbon atom. Chiral carbon atom is shown by carbon asterisk. But the plus or minus sign is different thing. This shows optical activity and it is determined theoretically. Just now we determined this theoretically. It was a theoretical concept, but this plus or minus sign is determined experimentally. It is more of experimental value. It shows optical activity. Whether this molecule is able to rotate the plane of polarized light towards right side or left side. So plus means it can rotate plane of polarized light
towards right side. So this can be determined only by experiment. Determined by experiment. Now what about L? Same molecule if I draw like this, wherein OH will be this side, H will be this side, C, it is tetrahedral. Then we'll look at this portion. Since it is in the left side, LHS, negative charge. so it will be L. This plus or minus we cannot say what it is. ये plus होगा ये माइनस होगा ये हम नहीं कह सकते. ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं बाई कॉन्वेंशन. दोनों को प्लस ले रहे हैं क्योंकि कुछ तो लेना पड़ेगा, इसलिए सिर्फ हम यहाँ पे डी और एल को ही डिटरमाइन कर सकते हैं थियोरेटिकली. ठीक है, तो कैपिटल एल और कैपिटल डी से हम डेक्स्ट्रो और लेवो बोलते हैं, लेकिन ये डेक्स्ट्रो और लेवो थियोरेटिकल वाला है. ठीक है, तो यहाँ प्लस साइन ये जो एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन करते हैं, और नेम तो होगा ग्लिसरल्डिहाइड. इसी के आधार पे डी ग्लूकोज, डी फ्रुक्टोज, एल ग्लूकोज, एल फ्रुक्टोज तक होता है. तो ये क्या था? ये ट्रायोज था. अगर इस अल्डिहाइड और इस CHOH के बीच में एक और कार्बन डाल दें तो क्या बनेगा? टेट्रोज बनेगा. ठीक है, तो वो जो टेट्रोज बनेगा उसका शेप कैसा होगा? ये एनसीईआरटी बुक में क्रिस्प तरीके से दिया हुआ है. इसको मैं यहाँ पे ओपन करके बता रहा हूँ. मैंने यहाँ पे डी ग्लिसरल्डिहाइड ले रहा हूँ मैं यहाँ पे. अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? यहाँ पे एक H और OH चाहिए. इसके लिए मैं क्या करूँगा? यहाँ पे एक रिएक्शन कराऊंगा. उस रिएक्शन का नाम है किलियानी फिशर सिंथेसिस. यहाँ पे मैंने KCN डाला. KCN डालेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है. ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे CN चला जाएगा और ये K प्लस यहाँ चला जाएगा. तो ये क्या बनेगा? CH CN O माइनस K प्लस ये एक बार समझ जाओ तो एक भी मॉलिक्यूल को रटना नहीं पड़ेगा.
ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया कि ये CN गया इस कार्बन पे, ठीक है, और ये K+ गया इस ऑक्सीजन पे, ठीक है। इसको और थोड़ा सा लेस कंफ्यूजिंग दिखाने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो दिखेगा कि हाँ यहाँ पे टॉप पे आया ये। वैसे तो ये चारों ओरिएंटेशन सेम ही है क्योंकि टेट्राहेड्रल है ना ये, तो यहाँ पे बस क्योंकि इसको कॉम्प्लाई करने के लिए कि ऐसा जैसा मैंने बनाया वैसा ही दिखे, तो मैंने CN को ऊपर से लेके गया, ठीक है। एकदम क्लियर करते हैं इसको अच्छे से। पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। बाकी COH, H वैसे का वैसा, और CH2OH। अब हमें पता है कि जब भी किसी साइनाइड को हम हाइड्रोलिसिस करते हैं या फिर पोटेशियम सॉल्ट को हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये अल्कोहल बन जाता है और ये एसिड बन जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे इसका H2O और H+ डाल के, तो ये बन जाएगा COOH COH ठीक है। अब इसमें क्या दिख रहा है, ये बन गया एसिड। इस एसिड का अल्डिहाइड बनाना तो बहुत आसान है, इसको हम पार्शियल रिड्यूस कर देंगे, पार्शियली रिड्यूस कर देंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से या सोडियम बोरोहाइड्राइड से। ये सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड को ही रिड्यूस करेगा, इनको रिड्यूस नहीं करेगा। लेकिन अगर हम दूसरा कोई, जैसे अगर हम टीन प्लस HCl ले लेते तो ये भी रिड्यूस हो सकता था। तो यहाँ पे हमने सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट लिया है, तो ये बन जाएगा अल्डिहाइड CH COH H CH2OH O और H। तो एक कार्बन एटम ज्यादा हो गया ना, ये ट्रायोज था, तो ये क्या बन गया, टेट्रोज। चार कार्बन आ गए, ठीक है। अब चूंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये प्लेनर है। तो ये जब KCN अटैक करेगा तो ये फ्रंट साइड अटैक भी कर सकता है और बैक साइड अटैक भी कर सकता है। अगर बैक साइड अटैक होता तो ये OH इस तरफ ना आके इस तरफ आ जाता,
तो ये मॉलिक्यूल कैसा दिखता है? ये मॉलिक्यूल दिखता है ऐसा, मतलब कितने हमने स्टेप्स किए हैं? 1 स्टेप, 2 स्टेप, 1 स्टेप, 2 स्टेप। ये जो सेम इधर के स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स मैंने इधर किया, तो ये मॉलिक्यूल ऐसा बन सकता था। CHO और C एक तरफ H, ये OH तो वैसे का वैसा, ये ऐसे का ऐसा, और ये OH इस तरफ आ जाता। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस दिख रहा है? यहाँ पे एक H इस तरफ है, एक OH इस तरफ है, और एक H इस तरफ है, और यहाँ पे सभी OH इस तरफ है। इसलिए इस तरह के मॉलिक्यूल को हम कहते हैं एरिथ्रोज। ये 3 एरो क्या शो कर रहा है? ये 3 एरो शो कर रहा है सेम डायरेक्शन ऑफ द OH, ठीक है। ये ऐसा कोई केमिस्ट्री नहीं है, मतलब मैं तुमको याद कराने के लिए ऐसा लिख रहा हूं। और ये क्या होगा? थ्रेओज। ठीक है, थ्रेओज। एक H इस तरफ है और एक H इस तरफ है। तो 2 आइसोमर हो गए, और दोनों आइसोमर कैसे हैं? दोनों आइसोमर एक प्रकार का एनोमर ही है, ठीक है। इट हैज डिफरेंट ओरिएंटेशन इन कार्बन एटम नंबर 2, है ना। कार्बन एटम नंबर 2 में थोड़ा डिफरेंस है। साइक्लिक स्ट्रक्चर में हम एनोमर बनाएंगे इसका, लेकिन ओपन चेन स्ट्रक्चर में उसको एनोमर नहीं कहते हैं, ठीक है। तो ये 2 आइसोमर हुआ, एक हुआ थ्रेओस, एक हुआ एरिथ्रोज, ठीक है, इसका टेट्रोज का। तो इसको समराइज करें थोड़ा एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हम पेंटोज बनाएंगे और फिर हेक्सोस भी बनाएंगे। लेकिन दोनों ही कैसा है? दोनों ही डी है। ये डी है और ये भी डी है, क्योंकि ये भी डी था, है ना। तो ये भी डी था, ये भी डी है, और ये भी डी है, बिकॉज ये किससे बना? ये इससे बना। ये प्रीकर्सर था ना, जो हम कह रहे थे, प्रीकर्सर। प्रीकर्सर मतलब जिससे बनता है ना, ओरिजिन मॉलिक्यूल। origin of all sugar, ठीक है। तो ये ट्रायोज था, इसमें 3 कार्बन है, और ये टेट्रोज था, इसमें 4 कार्बन है। इसके 2 आइसोमर हुए, एक हुआ एरिथ्रोज, सब OH एक तरफ, और एक है थ्रेओज, एक H इस तरफ और दूसरा H इस तरफ। एकदम से याद रहेगा ये? एकदम याद रहेगा? रहेगा कि नहीं रहेगा याद? हैंड रेज करके बताओ। एक लव कुश ही है जो मुझे थोड़ा चाहता है, बाकी कोई नहीं चाहता मुझे क्लास में। आई एम सो सैड। अब डिस्कशन में थोड़ा सा तेजी और, क्योंकि हमें सिंथेसिस तो आ गया है। तो अभी तक हमने क्या बनाया था? अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं अब से, CHO
CH2OH, और अगर मैं सिर्फ ऐसे लिखूं तो समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे H कार्बन OH दिखाया है, ठीक है। तो ये था एरिथ्रोज। अब अगर एरिथ्रोज का हम क्लियानी फीचर सिंथेसिस करेंगे तो इसके कितने प्रोबेबिलिटी हो सकते हैं आगे का पेंटोज बनने का। तो अगर ये पेंटोज बनाएगा, इफ इट फॉर्म्स पेंटोज, टेट्रोज से क्या बनेगा, पेंटोज बनेगा। अब टेट्रोज से क्या बनेगा, पेंटोज बनेगा। तो पेंटोज बनने के 4 तरीके हैं। प्रोसेस क्या है, वही KCN प्लस हाइड्रोलिसिस प्लस रिडक्शन। तो ऐसे केस में क्या क्या बन सकता है, ये बनेगा CHO CH2OH, ये तो कॉमन सब में होगा। CHO CH2OH, ये भी इसमें कॉमन। और क्या कलर ले लें, एक ये ले लेते हैं, CHO CH2OH, ये भी कॉमन। और CHO CH2OH, इसके बीच में 2 कार्बन हो गए, ये टेट्रोज था। 1 2 3 4, अच्छा इसमें सिर्फ 2, ये वाला ये हटेगा एक, है ना। तो अब पेंटोज बना रहे हैं हम, टेट्रोज से पेंटोज बना रहे हैं। टेट्रोज से पेंटोज बनाएंगे तो 1 कार्बन 2 कार्बन है, ये 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले वाले OH को इस तरफ लिख देंगे, दूसरा 2 सेम रहेगा। तीसरे में क्या करेंगे, पहला वाला सेम रहेगा, दूसरा वाला मुंह फेर लेगा। फिर लास्ट में क्या होगा, दोनों एक तरफ रहेगा और ये इस तरफ मुंह कर लेगा। तो इसको हम कहेंगे, पहले वाले को कहेंगे राइबोज, ये कहेंगे एराबिनोज, ये कहेंगे जाइलोज, और ये कहेंगे आयोडोज। कैसे याद रखेंगे इसको, RAXL, ठीक है। याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, RAXL, है ना, RAXL, बार बार लिख लिख के याद करेंगे, RAXL, इतना याद हो जाएगा तो राइबोज, एराबिनोज, जाइलोज और आयोडोज याद हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पेंटोज सुगर, ठीक है। तो हमने क्या देखा, फ्रॉम टेट्रोज टू पेंटोज। अब पेंटोज से क्या बनेगा, हेक्सोज, और फिर हमारा ग्लूकोज आ जाएगा, ग्लूकोज फ्रुक्टोज आ जाएगा, ठीक है। अब इसे कितने आइसोमर हो सकते हैं, 4 आइसोमर तो ऐसे ही हो गए, डी डी के, डी डी सब डी हो गए, और इसका एल भी होगा, एल 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 एंड एल, सो टुगेदर कितना, 8 आइसोमर्स। उसी प्रकार से मैथमेटिक्स लगाएंगे, ग्लूकोज मतलब हेक्सोज के कितने आइसोमर होंगे, हेक्सोज के 16 आइसोमर्स हो जाएंगे।
तो हमने क्या लिखा था अभी, आर ए एक्स एल। अब इसको याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, हेक्सोस को याद रखने के लिए ऐसे रखेंगे, ये हो जाएगा ए आर ए, इसको याद रखना, जी एल ए एम, इसको याद रखना, जी यू एक्स आई, और इसको याद रखना, जी ए एल टी। ठीक है, यानी कि आई मीन ये आर ये वाला है, ये एम ए, ये एक्स और ये टी। तो कैसा बनता है, इसका नेमिंग कर ले पहले। ये ए से बनेगा, ये ए से बनेगा एलोज, ये बनेगा एल्ट्रोज, ये होगा ग्लूकोज, यही तो है ग्लूकोज, और इसका आइसोमर मैनोज, ये हो जाएगा गुलोज, ये हो जाएगा आयोडोज, ये है गैलेक्टोज जो कि दूध में पाया जाता है, गैलेक्टोज, और ये हो जाएगा टैलोज। है ना। अब इसका आइसोमर कैसे बनाएंगे, बहुत इजी है, सब में एक एक लकड़ी बना देते हैं, एक लकड़ी, दो लकड़ी, तीन लकड़ी, चार लकड़ी, पांच लकड़ी, छह लकड़ी, सात लकड़ी, आठ लकड़ी, और सबका एल आइसोमर मिलके 16 आइसोमर बनाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, सब में CHO कॉमन, इसमें कोई याद करने वाली बात नहीं है। सब में CH2OH कॉमन, इसमें भी कुछ याद करने वाली बात नहीं है। आधा तो पैटर्न में ही याद हो गया, सिस्टम से ही याद हो गया, और बाकी याद करने का तरीका ऐसा है। 6 हेक्सोस बना रहे हैं हम, ये सभी क्या है, हेक्सोस है ना। ये हेक्सोस है, ये हेक्सोस है, ये हेक्सोस है, ये हेक्सोस है। तो 2 कार्बन बना लिया तो 4 कार्बन और बनेंगे। ठीक है, तो 4 कार्बन कैसे होंगे, 1 2 3 4। अब पहला वाला इधर, 1 2 3 4, फिर पहला वाला इधर, ये मुंह मोड़ लेगा, ये इधर, ये इधर, पैटर्न देखना, पैटर्न, ये इधर, ये इधर, ये मुड़ गया, ये इधर। ठीक है, ये देखो ग्लूकोज बन गया कि नहीं बना, ऐसे ही तो होता है ग्लूकोज, और यही तो हमें पढ़ना है। फिर ये इधर, ये इधर, ये इधर, और ये इधर, फिर सभी इधर, फिर एक इधर, सभी इधर, और फिर 2 इधर और 2 इधर। So these are rare isomers. ये सब रेयर है। इट इज द मोस्ट कॉमन ग्लूकोज, इट इज मोस्ट कॉमन। ये तो मिल्क में पाया जाता है वैसे। So we have to study this. So in this what do we see? In this we see that on this carbon, ये जो किरल कार्बन है, इसमें OH इस तरफ है
और H इस तरफ है, OH इस तरफ है, H इस तरफ है, OH इस तरफ है, H इस तरफ है, और OH इस तरफ है और H इस तरफ है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इतना, जो इतना पार्ट है, ये क्या है? दिस विल डिटरमाइन वेदर दीज आर डी और एल, दिस मच। यहां से स्टार्ट किया था ना, ट्रायोस, ट्रायोस से स्टार्ट किया था। तो ये डेक्स्ट्रोग्लूकोज है, डी ग्लूकोज। ठीक है, तो यहां से हम इसका एनोमर वगैरह सब बनाते हैं। क्या करते हैं, कभी ऐसा होता है कि इसका जो OH है, ये OH निकल के इसके कार्बोनिल में चला जाए और ये CH2OH बन जाए, तो ये एक हेक्सागोनल रिंग बनाता है जिसको हम कहते हैं पायरानोज। तो नेक्स्ट हम वो देखते हैं अब, ठीक है, कैसे होता है। देखो सर ने क्लास डाल दिया, रामदास सर ने। ठीक है, तो टुमारो we will learn how to remember the cyclic structures, anomers formula of glucose and fructose। ठीक है, एक बार समराइज कर लें, एक बार दोबारा। तो पहला क्या था, ग्लिसरल्डिहाइड। ये क्या था, ट्रायोज था। ये क्या बना, थ्रेओज एंड एरिथ्रोज। ये हो गया टेट्रोज, है ना। फिर टेट्रोज से क्या बना, टेट्रोज से बना राइबोज, जाइलोज, एराबिनोज एंड लाइजोज। ठीक है, तो ये था पेंटोज शुगर। इसी को फिर हम आगे डीएनए में यूज करेंगे। ठीक है, इसको डीएनए और आरएनए में यूज करेंगे आगे, जब न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ेंगे, इसलिए इसकी जरूरत पड़ी। फिर राइबोज से बना एलोज, एल्ट्रोज, जाइलोज से बना ग्लूकोज और मैनोज। इससे बना, नहीं, इससे बना गुलोज, इससे बना ग्लूकोज और मैनोज, इससे बना गुलोज एंड आयोडोज, और इससे बना गैलेक्टोज एंड टैलोज। तो 1 2 3 4 5 6 7 and 8 8 D isomers are there,
8 D isomers and 8 L isomers. Together it will be equal to 16 isomers of हेक्सोज. जो नीट का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा आज का डिस्कशन, और जो नीट का तैयारी नहीं कर रहे हैं वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ही कर लेंगे तो काफी होगा. कौन चीज रहा है? मिटा दो इसको. किसने किया? गंदा कर दिया देखो. हाँ ठीक है. तो माइंड मैप कैसे याद रखेंगे? RAXL, ठीक है, फिर ARAGLAM, देन GUXI, और फिर GALYT. ये है नेमोनिक्स. ठीक है. मेमोरी एड कैसे याद करते हैं? That's all. You can attend your another class, whatever is there.